Hello everyone, myself Deepak Kumar and I welcomes you on India's #1 leading platform, Nishkarsh Education. JNV 2024 एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन हम यहाँ पर कर रहे हैं और मैथमेटिक्स की रेगुलर क्लासेस आपके लिए मैं रोज लेकर आ रहा हूँ। नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम में टाइप्स ऑफ नंबर्स एंड टाइप ऑफ नंबर सिस्टम्स अब तक पढ़ चुके हैं। अब ये क्लास है नंबर सिस्टम के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आया है वो ऑपरेशंस फॉर फंडामेंटल ऑपरेशन इन होल नंबर्स। तो फर्स्ट आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू व्हाट आर फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस। व्हाट आर फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस? फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या होते हैं देखिए। What are fundamental operation? Okay, fundamental operations. Fundamental operation. Fundamental operations. What are fundamental operation? Fundamental operation are: first is addition. First is addition. Second is subtraction. Subtraction. Third one is what? Multiplication. Multiplication. And fourth is what? Division. What? Division. These are fundamental operation. How many fundamental operation? These are four fundamental operation. These are four fundamental operation. Okay. तो क्या होते हैं फर्स्ट फोर फंडामेंटल ऑपरेशन? आर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सिंबल्स आप सभी जानते हैं, एक बार मैं बता देता हूं। एडिशन इज रिप्रेजेंट एज दिस साइन, this is the sign for subtraction, and this is sign for multiplication, and this is the sign for division. Plus, minus, multiplication, division, these are four fundamental operation. अब इन फंडामेंटल ऑपरेशंस को अप्लाई करेंगे। ऑपरेशन क्या होता है? डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, उसका मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेशन? ऑपरेशन मींस जिसका आप ऑपरेशन कर रहे हो, ठीक है, which may be a person, may be a number. हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, हम किसका ऑपरेशन करेंगे? नंबर्स का। वी ऑपरेट नंबर्स। डॉक्टर्स ऑपरेट करते हैं किसको? पेशेंट को। हम ऑपरेट किसको करेंगे? हम ऑपरेट करेंगे नंबर्स को। तो नंबर्स में इन ऑपरेशंस को अप्लाई करेंगे। कौन से नंबर्स अभी पढ़े हैं हमने पढ़े हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सब। तो अब ये जो अगला टॉपिक है ये है आपके पास कौन सा? दीज फोर फंडामेंटल ऑपरेशन इन whole numbers. कौन से नंबर्स में? whole numbers. What are whole numbers? Whole numbers are natural number with zero. If we include zero in natural number, then the numbers are called whole numbers. Okay. So we can apply these four fundamental operation in whole numbers. Okay. So our topic is, okay, basically first we have to know about whole number. You all very well know about whole number. What are whole number? Whole numbers are all natural number together with zero. ये previous class में हम ये सब पढ़ चुके हैं। In previous class we have already studied about whole numbers, so you are all familiar with whole number. फिर भी एक बार देख लीजिए। All natural numbers together with zero are called whole numbers. सभी नेचुरल नंबर जीरो के साथ आ जाए तो उनको क्या कहने वाले हैं? हम होल नंबर्स कहने वाले हैं। एडिशन एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू होल नंबर इज मस्ट बी ए होल नंबर। बट देखिए यहां से जो लाइन लिखी हुई है इसको आपको मैं बाद में समझाऊंगा।
देखिए यहां से जो डेफिनेशन में जो लिखी हुई है, एडिशन एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू होल नंबर इज मस्ट बी अ होल नंबर बट सेम इज नॉट ट्रू while having the operation like subtraction and division on whole number। क्या रहे हैं, देखिए इतनी बड़ी जो बात है उसको मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूं। होल नंबर्स पर when we apply multiplication and addition on whole number then we get always a whole number। क्या कहा मैंने, if we apply addition and multiplication on any whole numbers, any two or more whole numbers, then we get a whole number, definitely we get a whole number, but same is not true for subtraction and division, same is not true for subtraction and division। Sometimes we get when we operate two or more than whole number by subtraction or division, then sometimes we get a whole number but all times we don't get whole numbers। मतलब कि हर बार जरूरी नहीं है कि होल नंबर्स ही मिले, समझ आ रहा है। अगर प्लस और मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस और मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको हमेशा दो और टू और मोर देन टू होल नंबर्स में अगर आप एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपको डेफिनेटली होल नंबर मिलने वाला है। ओके, बट ये सब जो है ये डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के लिए ट्रू नहीं है। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में क्या होता है, कभी कभी टू और मोर होल नंबर्स को अगर सब्ट्रैक्शन और डिवीजन से ऑपरेट करेंगे तो कभी कभी हमें होल नंबर मिल सकता है और कभी कभी हमें होल नंबर नहीं मिलेगा, मतलब कि हमेशा वो चीज ट्रू नहीं होगी। इस लाइन को आप अच्छे से समझ पाएंगे जब ये सेशन, आज की क्लास जो एंड होने वाली है तब तक आप इस लाइन को अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए यहां से आगे बढ़ते हैं। चलिए देखो यहां पर आया फंडामेंटल ऑपरेशन। क्या लिखा हुआ है, फंडामेंटल ऑपरेशंस। फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं, व्हाट आर फंडामेंटल ऑपरेशन, दीज प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, दीज आर fundamental operation, these are four fundamental operation in mathematics। okay, these are four fundamental operation in mathematics। okay, चलिए तो अब इनके लिए अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, वो फॉलो करवाएंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी है वो कौन सा ऑपरेशन फॉलो करता है। होल नंबर्स की बात कर रहे हैं, होल नंबर से बाहर की बात नहीं करेंगे। वी ओनली डिस्कस अबाउट होल नंबर, वी ओनली डिस्कस अबाउट whole numbers, not for integers, not for rational number, not for irrational number। okay, so these operations we can apply on whole number, only in whole number। okay, चलिए तो अब इनमें अलग अलग प्रॉपर्टीज रहती है, आप वो देखिए, अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है वो आप देखिए। फर्स्ट, वेरी फर्स्ट हम देखेंगे क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। ओके, फर्स्ट हम देखें, नोटबुक और पेन हाथ में होना चाहिए और यू मस्ट राइट व्हाट आई कैन राइट ऑन बोर्ड। ओके, तो जो मैं बोर्ड पे लिखूंगा आपको वो मस्ट लिखना है। ओके, चलिए फर्स्ट क्या है, एडी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ होल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ होल नंबर्स। ओके, तो एडिशन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे किसमें, होल नंबर्स के अंदर। प्रॉपर्टी किसकी पढ़ेंगे, एडिशन की, किन में, होल नंबर्स में। होल नंबर्स आप जानते हो क्या होता है, होल नंबर्स वी रिप्रेजेंट सेट ऑफ होल नंबर बाय डब्ल्यू, वी रिप्रेजेंट सेट ऑफ होल नंबर बाय कैपिटल डब्ल्यू। ओके, दिस इज द सिंबल फॉर होल नंबर। ओके, अब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे किसकी, किसकी, एडिशन की। प्रॉपर्टीज किसकी पढ़ेंगे, एडिशन की। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी, वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, फर्स्ट वन इज क्लोजर प्रॉपर्टी। अब व्हाट डू यू मीन बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है अगर आप, अब जो प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं आप ध्यान रखिए, सिर्फ और सिर्फ एडिशन की पढ़ रहे हैं, ये प्रॉपर्टीज किसकी पढ़ रहे हैं हम, सिर्फ एडिशन की।
ओके, तो यहां पर सिर्फ एडिशन के बारे में बात करेंगे और ऑपरेशंस के बारे में भी कोई बात नहीं कर रहे, तो सिर्फ और सिर्फ अभी बात किसकी करनी है, सिर्फ एडिशन की। ओके, तो सबसे फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी। व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी मींस व्हेन वी एड टू और मोर होल नंबर देन वी गेट अ होल नंबर। कहा क्या? अगर इफ हम दो या टू और मोर होल नंबर्स को ऐड करते हैं, क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमें एडिशन के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा क्या मिलने वाला है, आपको होल नंबर मिलने वाला है। समझ आया नहीं आया बताओ? समझ आया मैंने जो कहा है? देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी मींस व्हेन इफ से स्टार्ट कीजिए, इफ वी एड टू और more whole numbers, two or more, if we add two or more whole numbers, if we add two or more whole numbers, then after addition we get a whole number। ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर हम किसी दो या उससे अधिक होल नंबर्स को ऐड करते हैं, जो तो रिजल्ट मिलने वाला है वो भी आपको एक होल नंबर, डेफिनेटली होल नंबर मिलने वाला है। देखिए अगर नहीं मिलेगा तो इसका मतलब कि एडिशन जो होता है क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, और मिलता है तो इसका मतलब कि एडिशन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी से फॉलो नहीं कर, सॉरी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लेते हैं अब, एग्जाम्पल से समझते हैं। समझिए एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल लेंगे तो यहां पर ध्यान से देखिए, मैं कोई भी, आप कोई भी दो होल नंबर सोच लीजिए, कोई भी दो, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई भी बाउंडेशन नहीं है, आप कोई भी टू होल नंबर्स आप मुझे बता दीजिए, कोई भी दो होल नंबर्स। आपने कहा कि सर होल नंबर्स लेने हैं, तो आपने एक तो बता दिया 7 एंड 9, दीज आर टू होल नंबर्स। बेसिकली 7 and 9 are two whole numbers। 7 and 9 are two whole numbers। ओके, अब 7 और 9, 7 और 9 जो है वो आपके पास टू होल नंबर्स हैं। इनमें कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करवानी है? क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करवानी है अपने को? क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करवानी है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे फॉलो करेंगे? देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि अगर इनको, अगर इफ वी अप्लाई our operation which is addition between these whole number, if we apply addition on these whole number, then we get what? Add करो दोनों को, 9 और 7 we get 16, 9 और 7 we get 16, which is also a 16 is also a whole number, 16 is also a whole number। देखिए समझ आया है मैंने क्या कहा? देखिए छोटी सी चीजें हैं, इनमें सिर्फ ब्रेन यूज करना है और याद रखना है ना? ज्यादा टफ कैलकुलेशंस नहीं है, ज्यादा टफ कैलकुलेशंस नहीं है, बहुत इजी है, आपको बस इनको याद रखना है। 7 and 9 आर टू होल नंबर, 7 and 9 आर टू होल नंबर, ये हमने लिया है, लेट किया है, या ले दीजिए लेट 7 and 9 आर टू होल नंबर्स, देन उनको कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करानी? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो उनसे किससे ऑपरेट करेंगे? एडिशन से। अगर उनको हमने ऐड किया तो अपने पास कितना आया? 16। कितना आया? 16 आया। एंड 16 इज ऑल्सो अ होल नंबर, 16 इज ऑल्सो अ होल नंबर। तो कहेंगे क्या, क्या इंप्लाइज करता है? विच इंप्लाइज दैट, क्या कहा कि एडिशन in whole number addition in whole number is follow closure property।
प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी। ओके, देखिए हेंस, यहां से लिख सकते हैं हेंस, हेंस, ओके, हेंस एडिशन इन होल नंबर इज फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि होल नंबर्स में एडिशन जो ऑपरेशन है वो कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। ठीक है, अब आप इस बात को सोच सकते हैं, ये बात आपके माइंड में आ गई होगी कि आप अगर कोई भी दो होल नंबर्स लेंगे या दो से अधिक भी होल नंबर्स आप लेंगे, उनको ऐड करेंगे तो आपको हमेशा क्या मिलने वाला है, एक होल नंबर। होल नंबर होते क्या है, जीरो से अप टू इन्फिनिटी वाले नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। तो आप कोई भी नंबर्स ले लीजिए, एग्जाम्पल और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल्स की कोई अपने पास कमी थोड़ी है। टेक एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल, इफ यू कैन एग्जाम्पल 2, 5 and 2, 5 and 11 are whole number, are whole number। क्या लिए हमने, ये तीन होल नंबर्स लिए। चेक करेंगे वेदर दिस इज दिस फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी और नॉट। देखिए चेक करेंगे, इनको चेक कर सकते हैं। देखिए 2, 5, 11 कौन सा ऑपरेशन लगाना है हमने को, एडिशन के बारे में चेक करें। किसके बारे में, वी चेक अबाउट एडिशन। ओके, एडिशन करेंगे, एडिशन करेंगे, एडिशन करेंगे। ओके, ऐड कीजिए दोनों को, ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है, 5 और 2 7 और 7 and 11 इट इज 18। व्हाट इज, इट इज 18। द सम ऑफ 2, 5 and 11 इज 18। ओके, तो 18 इज such that 18 is also a whole number, 18 is also a whole number। 18 क्या है, 18 भी एक होल नंबर है। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि जिस फैमिली से मेंबर लिया उनको सबको साथ रखने के बाद वो फैमिली ही मिलनी चाहिए। ठीक है, समझ आ रहे हो, मतलब कि 2, 5, 11 तीनों को ऐड किया तो एडिशन के बाद जो मिला है वो भी उसी फैमिली से मिलना चाहिए जिस फैमिली से 2, 5 और 11 को लिया था। ठीक है, तो 2, 5, 11 को हमने कहां से लिया था, होल नंबर से लिया था। ऐड करने के बाद क्या मिला, 18। 18 भी कहां से मिला हमें, होल नंबर से मिला है। दैट मीन्स एडिशन इन होल नंबर इज फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, ये आप स्टार करके लिख लीजिए। ठीक है, और एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। ठीक है, और पीपीटी आपको मिल ही जाएगी, पीपीटी पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे चलिए, एडिशन की बात हो गई, एडिशन की बात कर ली कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी की। पहली कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी हमने, अब क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, व्हाट इज सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी इज, फर्स्ट पढ़ ली, अब सेकंड देखिए। Second property is commutative. What is second property? Second property is commutative. Commutative property. Commutative property. Okay. Commutative property. What is commutative property? Visible है ये कलर, बताइए ये कलर विजिबल है कि नहीं है। चलिए मैं थोड़ा डार्क कर देते हैं इसको, थोड़ा डार्क कर देते हैं, चलिए थोड़ा डार्क कर देते हैं इसको। चलिए ये लो, देखिए सेकंड वन इज, क्या हो गया, ओके, सेकंड वन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अब क्लोजर प्रॉपर्टी तो आपने देख लिया, व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज इफ वी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, देखिए इसको मैथमेटिकली लिखते हैं, है ना, हर बार लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, मैथमेटिकली देखिए व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इफ ए एंड बी, व्हाट इज ए एंड बी, a and b are any numbers, any whole numbers, a and b are whole numbers, a and b are whole numbers, a and b are whole numbers, ये whole numbers है। ओके, then
इफ ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, अगर ऐसा होता है कि ए में बी को ऐड किया जाए और बी में ए को ऐड किया जाए और दोनों क्या है आपके पास इक्वल मिले, दोनों क्या मिले आपको इक्वल मिले, देन हैंस 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 एडिशन एडिशन इन whole numbers, addition in whole numbers is follow commutative property. अब आप कहेंगे सर ये क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो, अरे इतनी सी बात तो सबको पता है, यू ऑल वेरी नोन अबाउट दिस, कि अगर ए को बी में ऐड करेंगे और बी में ए को ऐड करेंगे तो बात एक ही है, बट ये सभी नंबर्स ऑल नंबर्स के लिए ये बात पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ ये बात जो है ये होल नंबर्स के लिए बात कर रहे हैं, होल नंबर्स में ऐसा होगा, इन होल नंबर्स इफ वी एड ए टू बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी टू ए। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, व्हाट इज एग्जाम्पल ले लीजिए। ओके, सच फॉर एग्जाम्पल कोई भी टू होल नंबर्स ले लीजिए, एनी टू होल नंबर्स, देखिए 11 and 5 are two whole numbers, okay, 11 and 5 are two whole numbers। देखिए 11 and 5 क्या है, टू होल नंबर्स है, क्या करेंगे दोनों को ऐड करेंगे। देखिए पहले ये वाली साइड प्रूव करेंगे, a प्लस बी, अगर हमने किया 11 प्लस 5, a प्लस बी होगा 11 प्लस 5, a की जगह क्या है 11, b की जगह 5, 11 प्लस 5 किया तो हमें क्या मिलने वाला है, ये मिलने वाला है 16। ये कौन सी साइड सोल्व किया हमने, ये हमने साइड सोल्व की है LHS, कौन सी वाली LHS, कौन सी साइड सोल्व की है हमने, एक ये LHS, ओके। अब RHS कर लेते हैं, RHS क्या है, RHS है B प्लस है, मतलब कि 5 प्लस 11, B प्लस है यानी कि 5 प्लस, देखिए A प्लस बी, ये क्या किया A प्लस बी, यहां पर क्या किया B प्लस ए, यहां पर क्या किया B प्लस ए, यहां पर क्या किया A प्लस बी, ओके। B प्लस ए किया, B प्लस ए किया तो 11 में 5 को ऐड करेंगे तब भी आपको मिलेगा 16। ये क्या है, ये आपकी RHS, ये क्या है राइट हैंड साइड। देखिए A प्लस बी इक्वल टू 16 था, B प्लस ए भी 16 आया है, इसका मतलब कि जो है A प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए यहां पर प्रूव हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, LHS इक्वल टू RHS, ये बात प्रूव हो चुकी है, ठीक है, ओके। तो LHS RHS से दोनों इक्वल आए, ओके। तो इसका मतलब क्या कह देंगे कि एडिशन इन होल नंबर इज फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो एडिशन होते हैं होल नंबर में वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करते थे और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करते हैं। सारी प्रॉपर्टीज किसकी पढ़ रहे हैं हम, एडिशन के बारे में, ऑल प्रॉपर्टीज आर फ्रॉम एडिशन ऑफ होल नंबर, ठीक है। दो चीजें तो कंपलसरी है, एडिशन और होल नंबर। अब प्रॉपर्टीज है, पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी थी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी देख लीजिए, अगर हमने दो होल नंबर को ऐड किया तो एडिशन के बाद हमें भी एक होल नंबर मिलता है, ठीक है। और क्लोजर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ वी ऐड a प्लस बी, होल नंबर है उनको ऐड किया तो हमें किसके इक्वल मिलते हैं, b प्लस ए के। देखिए ये प्रॉपर्टीज है आपके बहुत आगे तक काम आने वाली, दिस इज नॉट फॉर ओनली इन 6th 7th 4th 5th स्टैंडर्ड, दिस इज फॉर 11th 12th BSc बैचलर डिग्री, जहां तक भी आपको ये प्रॉपर्टीज काम आने वाली है, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से आज ही समझ लीजिए, है ना। चलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बाद देखिए क्या आते हैं, अब आएगी अगली एसोसिएटिव, कौन सी आने वाली है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, थर्ड वन इज एसोसिएटिव, ओके, थर्ड इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी,
देखिए प्रॉपर्टी की जगह आपको एसोसिएटिव लो भी मिल सकता है, कंफ्यूज नहीं होना, एक ही बात है ना, एसोसिएटिव लो या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एक ही बात है सब जगह। वहां पर भी जैसे कम्यूटेटिव था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव लो भी हो सकता है यहाँ पे ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पर कम्यूटेटिव लो भी हो सकता है, तो आप उससे कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। इतनी से तो बच्चों वाली बात, छोटी बात है ये तो। चलो आप भी तो बच्चे हो, है ना। चलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, व्हाट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखिए, इफ, देखिए लिखिए इसको मैथमेटिकली, इसको लिखने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते, पहले से समझ लीजिए। इफ ए बी एंड सी, ए बी एंड सी आर टू होल नंबर, सॉरी थ्री होल नंबर, आर थ्री होल नंबर्स, होल नंबर्स, ओके। इफ ए बी एंड सी आर थ्री होल नंबर्स, ए बी सी आपने क्या लिए, तीन होल नंबर्स लिए हैं, ठीक है। अब इनमें क्या होगा, इनमें होने वाला क्या है, देन क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। दिस इज called associative property. This is called associative property. We change the location of bracket, we change the position of bracket, then answer is same, this is equal. If we add a plus b then add in c is equal to if we add a in b plus c। समझ रहे, डिफरेंस है दोनों में, सेम नहीं है, ठीक है। लेकिन एडिशन के लिए, होल नंबर्स के लिए ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है, एडिशन के लिए एंड होल नंबर्स, एडिशन इन होल नंबर्स के लिए ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है, ठीक है। चलिए एग्जांपल से समझेंगे, एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से समझेंगे। चलो फॉर एग्जांपल कोई भी थ्री होल नंबर्स बताइए, कोई भी तीन होल नंबर्स बता दीजिए, एनी थ्री होल नंबर्स, एनी थ्री, मैं यहां पर जो ले रहा हूं होल नंबर्स ये मेरे माइंड में आया है, ठीक है। दीज होल नंबर्स आर इन माई माइंड, इफ इन योर माइंड देर आर डिफरेंट होल नंबर्स, यू कैन चेक दिस प्रॉपर्टी बाय द होल नंबर्स इन कमिंग इन योर माइंड, ओके। जो आपके माइंड में आए हैं आप उनसे चेक कीजिए, मैं जो मेरे माइंड में आए उनसे चेक करता हूं। चलिए करते हैं चेक। फॉर एग्जाम्पल 3, 7, 9 are three whole numbers, are three whole numbers, whole numbers, 3, 7, 9 are three whole numbers, ठीक है। ये तीन होल नंबर्स मेरे माइंड में आए, मैंने ले लिए, कोई भी रेंडम लेने हैं, आपको कोई कंपलसरी नहीं है कि यही ले, आपकी जो मर्जी है वो ले लीजिए। बस ये प्रॉपर्टी में ध्यान रखिए, ये ए है, ये बी है एंड ये सी है, ठीक है। ये लीजिए, आप कैसे भी एबीसी भी उल्टे मान सकते हैं, आपकी मर्जी, ओके। दिस इज डिपेंड ऑन यू, टोटली डिपेंड ऑन यू, ओके। चलिए अब देखिए आगे क्या, आगे ये देखो, ये आप कंफ्यूज ना हो इनसे, ओके। 379, अब इसका ये तो क्या है, LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है, और ये RHS है। इक्वल टू से डिवाइड किया है, इक्वल टू इधर RHS मेरे राइट हैंड की साइड है, उसको मैं RHS कह रहा हूं, इधर मेरे लेफ्ट हैंड की साइड है, उसको मैं LHS कह रहा हूं, ठीक है। आपके भी जिधर लेफ्ट हैंड की साइड है उसको LHS कहोगे, और आपके नोटबुक में जो आपके राइट हैंड साइड है उसको RHS कहोगे, ठीक है। जो लेफ्ट हैंड साइड में है पहले उसको फॉलो करते हैं। मैं सबसे पहले क्या फॉलो करवाना है, आई वांट फॉलो फर्स्ट, आई वांट चेक लेफ्ट हैंड साइड, फर्स्ट आई वांट चेक लेफ्ट हैंड साइड। व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड इज a plus b then add in c, a plus b then add in c. I can write 3 plus 7 then add in 9. And what is RHS? What is RHS? RHS is a, RHS is a, means 3 plus 7 plus 9, this is RHS, okay. This is LHS, this is RHS, this is left hand side and this is right hand side. सोल्व कर लीजिए इनको।
इफ वी सोल्व फर्स्ट वी सोल्व ब्रैकेट, फर्स्ट वी सोल्व ब्रैकेट, ओके सोल्व कीजिए ब्रैकेट को, 7 10 7 3 10 हो गया, प्लस 9 करेंगे कितना आ गया, इट इज 19, इट इज 19, 7 9 ऐड करेंगे 3 प्लस, अब 7 9 को ऐड करेंगे कितना है, 9 7 16, देन इट इज ऑल्सो 19, देन दिस इज क्लियर दैट this is clear that LHS is equals to RHS is equals to 19, दोनों इक्वल है 19, दोनों किसके इक्वल है, 19 के इक्वल है, समझ आ गया। देख लो एसोसिएटेड प्रॉपर्टी है, क्या है कि A प्लस बी देन एड इन C इज ऑलवेज इक्वल टू A प्लस बी प्लस C, एड A इन B प्लस C, ओके इंग्लिश में कहिए इसको, लैंग्वेज में कहें तो अगर इफ वी एड A प्लस A सम ऑफ A एंड B इन C, इफ वी एड सम ऑफ A प्लस B सम ऑफ A एंड B इन C इज ऑलवेज इक्वल टू एडिशन ऑफ A इन सम ऑफ B और C, ओके तो इस तरीके से दोनों इक्वल रहने वाले हैं। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद लिखेंगे hence whole numbers follow associative लॉ और प्रॉपर्टी एक ही बात है, प्रॉपर्टीज लिख लीजिए ना, कंफ्यूजन है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन की बात कर रहे हैं और होल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो ये आप एक लाइन लिख दीजिए, हेंस होल नंबर्स फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, आप आराम से ये चीज प्रूव कर चुके हो, ठीक है। आपके जो माइंड में आते हैं नंबर्स आप वो लीजिए, ठीक है। ए बी जो मैं लिख रहा हूं ये आर्बिट्रेरी है, एच के अपनी इच्छा से जो चाहे आप ले सकते हो, आर्बिट्रेरी मींस एच अपनी इच्छा से, स्व इच्छा से आप जो चाहे वो नंबर्स ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ओके। मेरे माइंड में जो नंबर आ रहे हैं यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, आपके माइंड में जो नंबर आते हैं आप उनसे आराम से फॉलो करवा के घर पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हमने करवा ली, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है, दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ओके। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूशन करवाएंगे। नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ओके। नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ओके। फोर्थ वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कह देते हैं, लॉ फिर आप कहोगे अलग अलग यूज करते हो आप। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ये प्रॉपर्टी लिखा है ना, ये क्या लिखा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ओके। तो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूशन आप जानते हो ना, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन किया है कभी, डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी चीज आपके पास आती है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में दोनों चीजें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों होता है। तो आई थिंक इसको हम अभी के लिए रख देते हैं, जब मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तब आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे, वो पढ़ाएंगे अब इसको, जब मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको पढ़ाने वाले हैं। अब फिलहाल आप देखिए, उसके बाद चौथी जो आने वाला है नेक्स्ट, फोर्थ इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, existence of identity, existence of identity, identity, okay. What is identity, what is identity, symbol for identity is, I can say E, symbol for identity is E, small e, it is symbol for identity, ठीक है। अभी आपके काम का नहीं है, बस ध्यान रख लीजिए कि हाँ आइडेंटिटी का सिंबल होता है ए, ठीक है, ओके। अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के बारे में जानते हैं, व्हाट इज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जिसको आप अभी एडिशन की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं,
होल नंबर्स की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये आप माइंड में रखिए हमेशा। अभी हम एडिशन प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं और होल नंबर्स की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव सॉरी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी मीन्स इफ वी एड अ नंबर इन होल नंबर देन वी अगेन गेट वो नंबर जो हमने ऐड किया है। ओके, देखिए इधर समझिए, समझने की कोशिश कीजिए क्या कह रहा हूं मैं। देखिए, इफ a is a whole number, a is a whole number, a is a whole number, ये a अलग है, ये अलग है, ठीक है, इसको मैं अलग से लिख देता हूं। देखो, इफ a is a whole number, एक होल नंबर लिया हमने, देन एंड b is inverse sorry identity, b is identity b is identity of a, b is identity of a। ओके, यहां तक बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत? इफ a is a whole number and b is identity for a, b को a की आइडेंटिटी हमने माना है, ठीक है। अब इस b का वैल्यू फाइंड करेंगे, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b। ओके, so the definition of identity is if we operate a by its identity if we okay, इस लाइन को भी रहने दीजिए आप तो। if we operate a ऑपरेशन क्या है यहां पर? प्लस बाय इट्स आइडेंटिटी is if we operate a by its identity then we get again a मतलब कि a में एक ऐसा नंबर ऐड किया जाए कि वापस हमें a मिल जाए। a में मतलब कि if we add any number in any whole number then we get the whole number, वही होल नंबर हमें मिलना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समझिए, फॉर एग्जाम्पल 2 is a whole number, 2 is a whole number, then 2 प्लस आइडेंटिटी, यहां पर क्या आएगी? प्लस आइडेंटिटी, 2 प्लस आइडेंटिटी देन अगेन वी गेट 2। तो आपको क्लियर होगा कि आइडेंटिटी क्या आएगी। अरे इफ वी एड 2 इन एनी नंबर then we place 0 at the place of identity then we get 2। again for example number 1, for example number 2, any number 45 is a whole number, 45 is a whole number, 45 is a whole number। ओके, 45 क्या है? एक होल नंबर है। ओके, then 45 plus 0 again we get 45, that means 0 is identity, okay, so this is the definition of identity and then this is a statement। last conclusion क्या है? last conclusion है 0 is identity for 0 is identity for addition in whole number, addition in whole number। क्या लिखा? इंपोर्टेंट है ये, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। 0 इज आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स। क्वेश्चन आने वाला है आपके पास कि व्हाट इज आइडेंटिटी फॉर
what is identity for addition? Not in whole number, on integers, rational, irrational, all in all numbers zero is identity. इन होल सभी तरीके के नंबर्स में जीरो को आइडेंटिटी की तरह ही यूज करते हैं, ठीक है। तो एडिशन आइडेंटिटी कौन सी है, एडिशनल आइडेंटिटी कौन सी है, व्हाट इज एडिशन आइडेंटिटी? एडिशन आइडेंटिटी इज जीरो, एडिशन आइडेंटिटी इज जीरो, एडिशन आइडेंटिटी, एडिशन आइडेंटिटी इज इक्वल टू जीरो। ओके, ये आपको याद रखना है हमेशा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एडिशन आइडेंटिटी इज जीरो। एंड आफ्टर आइडेंटिटी नेक्स्ट 5 property is, what is 5 property? 5th property is, I can say 5th property is inverse. What? Inverse. Inverse. What is inverse? Inverse is, डेफिनेशन देखें इनवर्स की, व्हाट इज इनवर्स? डेफिनेशन देखें मैथमेटिकली, मैं आपको बताता हूं। इफ ए इज अ होल नंबर, ए क्या है? एक होल नंबर है, ओके, ए इज अ होल नंबर, देन इनवर्स क्या होने वाला है? इनवर्स होता है कि ए को इनवर्स के साथ ऑपरेट किया जाए, ए को इनवर्स के साथ ऑपरेट किया जाए तो आपको आइडेंटिटी मिलना चाहिए। क्या है? ए ऑपरेशन क्या है? प्लस इनवर्स, ए प्लस इनवर्स इज इक्वल टू क्या मिलना है हमें? आइडेंटिटी। ए प्लस इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। दिस इज डेफिनेशन फॉर इनवर्स, दिस इज डेफिनेशन फॉर इनवर्स। if we add inverse of any whole number, inverse of any whole number, then we get identity. okay, for example, एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से इसको वेरीफाई करते हैं, इज दिस इज ट्रू और नॉट, इज दिस इज ट्रू और नॉट, एग्जाम्पल से वेरीफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एनी होल नंबर, 7 is a whole number, 7 is a whole number, 7 is a whole number. Then what is definition of inverse? Inverse की definition है, if we add 7 and its inverse, 7 and its inverse, then we get identity. What is identity for addition? What is identity for addition? It is 0. यहां फाइंड किया ना हमने, what is identity for addition is 0. देखिए 7 में उसका इनवर्स ऐड करें तो हमें क्या मिलना है? 0. ओके, इस 7 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो यहां से इनवर्स आपको मिलेगा, इनवर्स आपको मिलेगा -7. देन इनवर्स ऑफ ए होल नंबर, देन इनवर्स ऑफ ए इज -a. ए का इनवर्स क्या आएगा? -a. 7 का इनवर्स क्या आएगा? -7. ओके, 5 का इनवर्स क्या आएगा? वो आएगा -5. ओके, 6 का इनवर्स -6. ठीक है, तो इनवर्स, व्हाट इज इनवर्स इन होल एडिशन ऑफ होल नंबर? व्हाट इज इनवर्स? इनवर्स इज नेगेटिव साइन, इनवर्स इज नेगेटिव नंबर, inverse is negative number. okay, so inverse for 7 is -7, inverse for 8 is -8, inverse for 10 is -10. these are inverse. okay, तो ये होते हैं inverse. okay, अब next one is, this is all properties about, this is the all properties about whole number and addition. कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ी अभी तक हमने? these all properties are addition properties in whole number. these properties are addition property in whole number. whole numbers में कौन सी क्लोजर प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एंड देन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एंड देन एसोसिएटिव है, एंड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है, एंड इनवर्स है। अब इनवर्स में एक बात देखिए, इनवर्स निकाला हमने, इनवर्स हमने फाइंड कर लिया है, ठीक है, इनवर्स हमने फाइंड किया। इनवर्स क्या है? 7 का इनवर्स है -7. बट टेल मी, -7 इज अ होल नंबर और नॉट?
सिंपल क्वेश्चन, -7 इज होल नंबर और नॉट? क्या होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स आते हैं? तो हमने कल जब नंबर्स पढ़े थे तब बताया था कि नेगेटिव नंबर शुरू होते हैं इंटीजर के बाद, इंटीजर से शुरू होते हैं। व्हाट इज इंटीजर? इंटीजर इज इंटीजर आर नेचुरल नंबर्स विद जीरो एंड देयर नेगेटिव्स। तो नेगेटिव नंबर्स आर इन इंटीजर्स, नेगेटिव नंबर्स आर इन इंटीजर, therefore -7 is not whole number, whole number. -7 is a not whole number. -7 whole number नहीं है। इसका मतलब जो that means inverse of whole numbers, inverse of whole numbers are not belongs to whole number. That means inverse of whole number are not belongs to whole number. That means inverse of whole numbers are not belongs to whole number. Inverse of whole numbers are not belongs to whole number. These are all about addition property, properties of addition in whole numbers. I hope you enjoy the today's session, and in next session we discuss about all these property for multiplication. These all property, closure property, distributive property, again a new property, distributive property, which is include both property like addition and multiplication. And also we discuss these property are follow in माइनस साइन और प्लस, मतलब माइनस और डिवीजन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में दिस प्रॉपर्टी आर फॉलो और नॉट। तो ये सब चीजें पढ़ने वाले हैं अगले सेशन में। आई होप यू एंजॉय टुडे सेशन। थैंक यू सो मच।